Right, as we go, a short recap of our formulas. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं. So this chapter we said that given 2 points P, x1, y1, and another point Q, x2, y2. Even if you're not writing, I'm fine, children. The distance between the 2 points is given as, now, hang on, this is hung up. Every day. You can write the distance formula by that time. The distance is given by under root of difference of the x coordinates, square of the difference of the x coordinates. So this will be under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, sorry, y1 whole square. Doesn't matter how you order them as long as you calculate the difference properly. This was the first formula we learned. And the second formula we learned was section formula, that given 2 points, say R, which is x1, y1, and another point S, which is x2, y2, then suppose there is a point P whose coordinate is xy, and P divides it in the ratio of m is to n, then we say that the x coordinate is equal to mx2 plus nx1, idhar ka udhar, udhar ka idhar, divided by m plus n, and the y coordinate will be given by my2 plus ny1 divided by m plus n. And if it is a midpoint, x mid will always be equal to x1 plus x2 divided by 2, and y mid will be equal to y1, sorry, plus y2 divided by 2. All our formula basic problems we get. And another thing, सीख लो, क्योंकि कभी-कभी आ जाता है, तो there's nothing great. Suppose you are given a triangle, okay? Suppose you are given a triangle like this. Then let us first understand what do we mean by a median. A median is a line which touches the vertex to the midpoint of the other side. Vertex to the midpoint of other side. And say you are given the three vertices, x1, y1, x2, y2, okay, and x3, y3. So this is median. Median will always touch the midpoint, right? तो इसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 plus x3 divided by how much beta, 2, and y2 plus y3 divided by 2. Did you understand this thing? This is the midpoint ना, median है. उसी तरह यहाँ भी एक मीडियन निकलेगा. ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकता है, इस साइड भी एक मीडियन निकलेगा. सबका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है. मान लीजिए हमारे पास एक और मीडियन है, वी हैव अनदर मीडियन, एंड दिस मीडियन इज गोइंग एंड हिटिंग हियर. ऐसे जब 3 मीडियंस हो जाएंगे ना, देन दिस पॉइंट इज नोन एज माय सेंट्रॉइड. इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड. दिस इज सेंट्रॉइड, एंड द सेंट्रॉइड एक्चुअली विल डिवाइड द मीडियंस इन द रेशियो 2:1. ये रेशियो भी 2:1 हो जाएगा. और सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, वो हमेशा होता है सम ऑफ द 3, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. During COVID they had brought up one question of it. इसके बाद और नहीं आया, कभी देखा नहीं. Finding the centroid is this is the coordinate for the centroid. Centroid is the midpoint, not midpoint, the point of intersection of 3 medians. And a median divided. If you want to find out this formula, how will you find out this formula? You use this as the section formula. 2 into this plus 1 into this divided by 2 plus 1, 3. इसीलिए नीचे 3 आता है. आप करके भी देख सकते हो घर पे. Did you understand? Centroid कैसे निकालते हैं? ये इसका x coordinate आपको पता है ना? Piyusha, did you get it? So you will take 2 multiplied by x2 plus x3. करके ही देख लो ना कितना होता है. Let's see the x coordinate. The x coordinate should be 2 times of x2 plus x3 divided by 2 plus 1 times of x1 divided by 2 plus 1. इसको करके देखो तो कितना हो गया बच्चा? इसको करने से ये कितना हो गया? x2 plus x3, because these 2 and this 2 will cancel, plus x1 divided by 3. तो इसी तरह y भी आपका आ जाए. क्लियर है? चले प्रॉब्लम्स करने अभी. Anyone has any doubt? Anything? Any hiccups? Any खांसी वासी? No? Understood बेटो? Right. So let's go. चलिए फटाफट करेंगे. जो इजी प्रॉब्लम्स होंगे आप करने की कोशिश कीजिए. चलिए ये निकालिए तो आप निकालिए. Find the values of, अच्छा, whenever you do these problems beta, first draw a rough sketch which makes you get the problem easy. यहाँ पे बोला है find the value of y, तो कुछ ऐसा है. 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, एक ये पॉइंट दिया है, एक ये दिया है.
फॉर विच, और ये पॉइंट है ए, पिक्चराइजेशन आपको हेल्प करेगा। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 11 और y आपको निकालना, इसका डिस्टेंस भी आपको दे दिया है 10 यूनिट्स। अब आपको ये y की वैल्यू निकालनी है। अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x। अन्य बेटा समझ में आया तो ओके फाइन सो फार। थोड़ा शायद आप थे नहीं, आप मिस के, मैंने सेंट्रॉइड वाला पार्ट समझ में आया तो बेटा ये वाला समझ में आया आपको? नो आई एम सेइंग कुछ ये दो तो हमने उसी दिन किया था, ठीक है ना। ये वाला बिट्टू देख लो, अगर कोई ट्राइंगल में आपको 3 वर्टिसेस दे देता है, एंड व्हाट इज अ मीडियन? अ मीडियन जॉइंस one vertex of the triangle to the midpoint of the other side. अब तुम्हें ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट भी पता रहेगा। straight away sum of the x coordinates divided by 2, sum of the y coordinates divided by 2, and the point where all the medians meet is known as the centroid. centroid जो है किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाने से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ये कैसे आता है? तो आप ये लगा लो 2 * ये x कोऑर्डिनेट प्लस 1 * ये x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो 2 ने 2 को काट लिया, x2 + x3 + x1 डिवाइडेड बाय 3 जो कि ये है। उसी तरह आप y निकाल सकते, ठीक है। और ये हमारा पहला प्रॉब्लम। एनीवन डन सो फार बेटा? अच्छा, ये तो कब का मैं यहाँ पे लिख भी चुका था। When I was writing, I was here. This part was exposed. Don't give me that excuse. पूरा प्रॉब्लम कैलकुलेशन सेंट्रिक है, कर पाएंगे? इस साइड में कितना है 3 और 11 को आप निकालेंगे तो कितना रहता है? सिर्फ y तो निकालना है ना। हाँ, वैल्यू ऑफ y क्या है? क्वाड्रेटिक क्यों आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे 8 और नहीं आएगा। 3 और 11 कितना है डिफरेंस? 8 का स्क्वायर कितना है 64, और उसका स्क्वायर कितना है? हाँ, y + 1 कितना है? हाँ, y + 1 होल स्क्वायर। तो ये साइड का रूट उठ गया, उस साइड में कितना हो गया 100, ठीक ना। 100 से 64 निकल गया तो कितना रह गया 36। y + 1 हो गया कितना? y + 1 इज इक्वल टू कितना है +6 - 6। इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है ना आरव। आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों के साइड में। आप इसको तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो क्वाड्रेटिक करके? 64 इस साइड आएगा तो 36 ना। तो y + 1 कितना होगा ±6। तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है 7, और y की वैल्यू कितनी हो सकती है 7 नहीं, सॉरी, y की वैल्यू हो सकती है -7 और y की वैल्यू हो सकती है +6 लिया और फिर 1 वहां पे गया तो कितना हो जाएगा 5, -6 लिया तो 7। हाँ, पर आप क्वाड्रेटिक निकालने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? मुझे पता चला जब 10 और 8 का सौदा हो रहा है ना, 10 और 8 में होता है 100 और 64, निकालने से 36 का गैप आएगा। ये दिस इज डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स। अच्छा, इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं ये ऐसा ही क्यों आ रहा है y का? why is y coming like this that the distance is same? take a point on the coordinate system। सोचो क्वाड्रेंट में ऐसे करोगे तो भी एक डिस्टेंस सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी एक डिस्टेंस सेम आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, दोनों में एक जैसा डिस्टेंस। फ्रॉम अ पॉइंट यू कैन ऑलवेज ड्रॉ आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? एवरीवन को डू दिस प्रॉब्लम। चले नेक्स्ट वाला, आइए नेक्स्ट कीजिए। If the point this is equidistant from the points this and this, that means it's an interesting problem. We have got 2 points now, and our 2 points are, this point is say A, which is 3 and K, and we have another point B, which is how much? K and 5.
k and 5, ये है हमारा पॉइंट B, and we have a point P, यहाँ पे एक पॉइंट P है, and this point is equidistant from both the point. P का कोऑर्डिनेट है k -1 and 2. Then find मिड पॉइंट लगा सकते हैं, डिस्टेंस लगा सकते हैं, आप इन दोनों का डिस्टेंस लगा सकते हैं. अल्टीमेटली यू सी हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू हैव टू कैलकुलेट, सिंगल वेरिएबल. लेकिन मजेदार किस्सा क्या है, आपको सिर्फ k पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. पर k की मजेदार चीज क्या है, k कभी x में भी अपियर कर रहा है, k कभी y में भी, मतलब डबल इक्वेशन जाएगा आपको यहाँ पे, एक तरह से आप नहीं निकाल पाएंगे. हाँ, क्योंकि एक किसी भी साइड में आपको सॉल्व नहीं देगा वो k, कहीं x में गायब है तो कहीं y में गायब है. चलिए निकालिए. एक तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं. व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला? यू कैन से k-1 मत लो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला में, इजी वाला लो, y का लो. y में कितना रहता है, y का जो 2 है ना, दिस शुड बी इक्वल टू इधर का y प्लस उधर का y. एक बार में हो गया. Did you get it? The trick in these problems, there is no point in solving it elongated. ये जो y है ये known है हमें, ये साइड का y भी known है, वो साइड का y unknown है. ये मिड पॉइंट है ना, इक्विडिस्टेंट है, तो बस इसी पे खेलेंगे. इस पे मत खेलो, ये और कचरा करेगा आपके प्रॉब्लम को. So here you have to see how short you can do this problem. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में उठा के दे देगा. So obviously there is not much दिमाग involved. हाँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा. -1 डाल के देखो दूसरे एक पे k सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. अब इसमें इसका x में चेक करके देखो. कैसे चेक करके देखोगे? k + 3 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू k -1. तुमने k का वैल्यू कितना बोला? -1. तो यहाँ पे हो जाएगा -1 - -2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? हाँ, गड़बड़ी हो रहा है ना. यहाँ से k और यहाँ से 3 है. k + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k -1. हमारी वैल्यू कितनी निकली k की? -1. हाँ, -5 निकलेगा. 2 2 = 4, और k अगर 4 होगा, 4 - 5 इज -1 आएगा ना. -5 क्यों होगा? पहले देखो ये इक्वेशन ठीक आया कि नहीं. पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3k and 4k. What went wrong in this problem? Something has gone wrong, and I have identified it what has gone wrong. My mistake also, and what went wrong. Basic understanding has gone wrong. Nothing about calculation, all correct. तुमने कैसे सोच लिया कोई इक्विडिस्टेंट पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा? ऐसे भी तो इक्विडिस्टेंट हो सकता है. समझ में आ रहा है कहां आप गलत हो गए हैं? ये वाला assumption गलत है आपका. It's not midpoint. Equidistant does not mean midpoint. Equidistant and collinear means it's a midpoint. So now you have to apply distance formula only and work it out. Distance between this and this should be equal to. चलो चलो, उसमें टेंशन नहीं है. इतना मुंह लटका के क्यों करते हो? गलती होगा तभी ना सीखोगे. आओ चलो, let's do. So let's find the distance. What is the distance? 3 - k whole square. No, sorry. K -1 minus k. Plus 2 - 5 is -3. -3 का square is 9. This should be equal to, उधर करो, 3 - k - 1. यानी कि 3 - -1 is 4. 4 - k whole square. और कितना होगा? k - 2 whole square. देखो तो बच्चा, यही आता है कि नहीं? k और k कट जाएगा, 1 square. So 1 + 9 should be equal to, यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाएगा तुम्हारा. कितना हो गया? कौन सा बेटो?
4 माइनस के नहीं, मैंने ऐसे किया ना, यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 3 माइनस के माइनस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस के होल स्क्वायर होगा ना बेटा, -1 कितना आया 10 एंड -4, 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना आया के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर, यहाँ पे -4k + 4, ठीक है। अब सब सुलटाइए, 9 + 1 10, और कितना है इधर आएगा 16, और कितना है 4, तो कितना हुआ 26, और 10 16, -16, -8k -4k कितना होता है -12k, तो बन गया +12k, और k स्क्वायर और k स्क्वायर पे हो गया 2 स्क्वायर -2k स्क्वायर = 0। इसको सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर -6k, और ये कितना हो जाएगा +8 = 0। सर वो -16 16 और 4 20, -10, हाँ तो 10 होगा -10, और -10 मतलब ये हो गया 5, 5 पे मैच करेगा, हाँ 5 पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, 5 पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, -5k -k। आपका आंसर गलत आया, कुछ और आया क्या? I got -40 6k -40 कैसे आया बेटो, आप भी चेक करो, तो ये कितना हो गया k स्क्वायर -k -5k एंड +5 = 0, यहाँ से k कॉमन लिया तो कितना आया k -1, इधर k -1 आना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ -5 कॉमन लिया तो 0, तो k की वैल्यू हो गई 1, और k की एक और वैल्यू हो गई 5, k -1, हाँ k 1 और 5 है, ठीक है। चलो चलो बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग। All these distance formula में the roots will cancel because it's root on both sides. Did you understand how I got this step? Actually, originally the step should have been like this. Then your step becomes squaring both sides. Both sides square करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, हाँ रूट ओवर निकल जाएगा दोनों साइड से। देखो तो बेटू आया कि नहीं, ऋषभ आया बेटा, आंसर मैच किया हमारा 5 and 1, ठीक है। चलिए आगे, अभी बैठा है थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। चलिए तो एक चीज हमने सीखा, इक्वी डिस्टेंस नीड नॉट बी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने के लिए जब हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तब इसको कोलिनियर होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये देखो, हाँ सर बोलिए। नहीं, इक्वल डिस्टेंस कैसे मिड पॉइंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से भी तो इक्वल डिस्टेंस होगा ना बेटा, ऐसे भी तो इक्वल हो सकता है। मिड पॉइंट कब होगा? जब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे और उन्हें जोड़ने से ये बनता है। मिड पॉइंट विल बी व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, क्राइटेरिया नंबर 1, and criteria number 2 is adding these two should give you this distance, then only the 3 points are collinear. ABC is collinear if AB equal to BC and AB plus BC is equal to AC, वरना collinear तो नहीं है, isosceles triangle जरूर है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यही मिस्टेक हमने पहले किया था। चलो अब नेक्स्ट ये कीजिए, find the point on x axis। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, what is the trick? Find the point on x axis, मतलब पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, x0 होगा वो पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी a0 b0 c0 व्हाटएवर इट इज, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है ना, व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। निकाल लेंगे, मतलब अगर हम ड्राइंग की भाषा में देखें तो हमारे पास दो पॉइंट है बेटा। कौन से पॉइंट है? 5 और -2, दूसरे साइड में -3 और 2, और जो पॉइंट आपको निकालने बोला है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट, अगेन इक्विडिस्टेंट है, इसके ऊपर मत बिठाइए। दैट पॉइंट इज अ पॉइंट P एंड वी विल से लेट इज x कोऑर्डिनेट बी x, y कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0। तो ये है क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। ट्रिक समझ में आ रहा है? चलिए
कैसे निकालेंगे फटाफट? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, x माइनस माइनस 3 मतलब हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर, और उस साइड में कितना हो गया 0 माइनस 2 होल स्क्वायर यानी कि 4, ये इक्वल हो जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और उस साइड में कितना है नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। 4 ने 4 को काट डाला, यहां तो बढ़िया होगा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25, देन माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काट डाला, और यहां से हो गया 16x इज इक्वल टू 25, और यहां से निकालेंगे 9 तो बनेगा कितना 16 ही बनेगा। 16 ने 16 को काट दिया, x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखो भाई साहब आया कि नहीं? मैं भी गलत हो सकता हूं, गलत ही होता हूं। तो भाई साहब समझ में आया? वेदांत तो ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? हाँ, और तुमको वो प्लम एप्पल कैसे दिखा रहे बेटा? हाथ के अंदर जो चीज सर्कल में आ गया, स्केलिंग का कोई अंदाजा नहीं है। वो फोटो में पाम के अंदर में वो लाल गोल चीज है, तो वो आप एप्पल कैसे बन सकता है? मतलब मेरा हाथ का पाम नहीं दिखा सामने, कोई एप्पल पाम के अंदर में फिट होके सारा बाउंड्री भी दिखता है क्या? घड़ी का एड्स देखिए, घड़ी का अमेजोन वगैरह में जब घड़ियां ऐड देते हैं ना, तो घड़ी का साइज कैसे पता चलेगा? वो लोग कैसे दिखाते हैं? दे शो बाय कॉइन साइजेस, दे विल शो अ कॉइन, लेडीज वॉच में बहुत रहता है, इट इक्विवेलेंट टू अ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, ताकि आप घड़ी का डायल कितना बड़ा है नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप 2 रुपी कॉइन एक रख लो। ये प्लम को बोला ये एप्पल है, उस पे ये लिखता है सर हमें देंगे क्या? हाँ, मेरा रिप्लाई नहीं देखा उसमें, मैं भी बहुत प्यार से रिप्लाई किया हूँ। मैंने लिखा, सुबह से नहीं खोला, वो लोग खोल चुके होंगे जो ऑनलाइन है, उन्हें दिखेगा रिप्लाई। ठीक है, चलें आगे। ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर, ये इजी था। चलिए ये वाला कीजिए, लाई ऑन ए किरकिल। लाई ऑन ए किरकिल मतलब ऑल पॉइंट्स विल बी क्वालिफाइंग फॉर रेडियस पॉइंट्स विद द सेंटर, एंड इन ए किरकिल रेडियस इज ऑलवेज सेम, सो दे लाई ऑन ए किरकिल विद सेंटर इज कितना 0। तो हमारे पास एक किरकिल दिया हुआ है, किरकिल का सेंटर कितना है 2, हाँ -3y, और 3 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है भाई साहब, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, जहां तुम्हारी मर्जी। एक पॉइंट है B, इसका डिस्टेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 5 7, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1y, है ना। किरकिल में ये चीज और ये चीज तो भाई साहब बराबर होना चाहिए। हाँ, बस इक्वेट करवा दीजिए अभी। प्रॉब्लम वाज टू पुट द सर्कल लॉजिक इन इट, rest all is same. Can you now solve? So slowly the skill that you should develop is how do you solve those root squares quickly, and how each problem will come with a new thought process. कभी इक्विडिस्टेंट, कभी सर्कल का सौदा होगा, कभी इक्विडिस्टेंट होगा, कभी किसी प्रॉब्लम के अंदर रूट में अच्छा दिमाग लक है तो डायरेक्टली स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर आ जाएगा, वो भी इजी है। चलिए प्रदीपांशु, एग्जाम में लेकिन ऐसे मत लिखना, स्टेप पर लिखना, नहीं तो काट के तुमको देगा। छिलका छील के संतरा जैसे हाथ में मम्मी देती है, एग्जामिनर भी वैसे छील के अंदर का देगा। अच्छा, अभी तुम्हारे स्कूलों में वो एनुअल सीजन आ गया ना, इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट वाला सीजन, क्या बोलते हैं उसको, MUN। हाँ आ चुका है ना। MUN मतलब दूसरा स्कूल जाओ, फिर वहां उसका इंस्टा आईडी किसी भी तरह दे दो ना, उसका इंस्टा आईडी, वही तो है, उससे ज्यादा और क्या होता है उसमें। हाँ, इस बार सुना है चिरेक और सैंटा मरिया में भी फाइटिंग हो रहा है, देयर इज अ इंस्टा वॉर गोइंग ऑन फॉर MUN डेट्स, और देयर इज अ क्लैश और समथिंग। हाँ, जस्ट सम फाइट गोइंग ऑन, ये सब आधे तो MUN में सिर्फ, आधे तो MUN में स्टाइल मार के जाते, क्या है आई एम क्या डिग्निटरी एंड प्रेस। हाँ,
और क्या ये लाने के लिए इंस्टा आईडी एक्सचेंज होता है उसमें, और कुछ नहीं। But 7n जो ओसी लोग हैं ना सर, कितना जोश है तुमको ना, एकदम मैथ्स रोक के एमयूएन की बातें कर रहे हो, वाह वाह वाह, 100% तुम तो उसी के लिए जाते हो। ओसी लोग अच्छा, सुनने में आया कि किसी दूसरे ओसी ने क्या होता है, एक दो चिट्ठी पे किया अबाउट इंस्टा। मैं तो पहले ही बोल दिया, हिंदी में से एमयूएन का नाम है अखिल भारतीय किशोर किशोरी समारोह, यंग बॉयज एंड गर्ल्स मीट ऑल इंडिया, दैट इज एमयूएन। कुछ नहीं पता, चैट जीपीटी से छिपवा के लिख के लाते हैं और बरबर बरबर करके बोलते रहते हैं एमयूएन। पूछो जाके इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वही नहीं पता। एमयूएन, एमयूएन, वी आर डेवलपिंग लीडर्स फॉर द फ्यूचर। क्या आया कि नहीं तुम्हारा? मुंह ऐसा बना रहे हो बैंगन की तरह, क्यों निकल नहीं रहे? अरब आया कितना? -13.7। ऋषभ आया? हाँ, -13.7, ये सब अच्छे आंसर है, ये पॉइंट में नहीं आता है सीबीएसई का आंसर। -7 and 1। मुझे -1 नहीं, ऑपोजिट तक कोई बात नहीं ना, एक ही तो y की वैल्यू बोलना है, एक ही बात ही आएगा, ऑपोजिट तो नहीं होता ना बेटा। y का दो वैल्यूज आएगा, बोलो आपके क्या वैल्यूज आए ऋषभ, बोलो। 7 and -1। यू ऑल्सो 7 and -1। आशका क्या आया बेटू? हाँ, इसका मतलब कहीं एक माइनस में गोलाबाजी किए हो, देखो -7 1 बहुतों का आया है, तुम्हारा भी -7 1 आया है, और एक का इंतजार करते हैं। यथार्थ क्या आया है? क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? मतलब मेरे को करना पड़ेगा इसको, 2 और 1 को करने से कितना होता है? 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर कितना है? 2 - 1 -1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और वहां पे कितना है? -3y -4y, -4y को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16y स्क्वायर। और इस साइड में कितना है? इधर क्या है? सेंटर से 2 और 5 मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया 9, और उधर कितना है? -3y -7 हो गया, -3y -7 होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों? 9 ने 9 को काट लिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? 9 के बाद में, हाँ, 9 के बाद में प्लस है, सॉरी, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3y का हो गया 9y स्क्वायर, और कितना हो गया? 2ab, यानी कि हो गया प्लस 2 7 जा 14, 14 3 जा 42y, और प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? अब कितना हो गया? 9y स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे, 16 से 9 निकालना कितना आता है? 7y स्क्वायर, बहुत अच्छा, -42y और -49 इक्वल टू, छुटका कीजिए, y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर ही रहा, -7 है, तो इसमें आएगा -7y + y, -7 इक्वल टू 0। कहा आप लोग y से y -7, इधर y -7 होना ही पड़ेगा, यानी कि इधर 1 आएगा, तो y + 1 इंटू y -7 इक्वल टू 0। y की वैल्यू हुई -1 और y की वैल्यू हुई +7, ये है आंसर, -1। हाँ, तो आशका मैडम का करेक्ट आया था। जो भी है वो आई केप्ट बोलने से तो और नहीं होगा, दैट मीन्स वो तो बैठाएगा आपको भगवान दास का, हल्दीराम का बूंदी वाला लैड्यूज, you get it? बहुत अच्छा साहब, आपको तो इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं, क्वेश्चन गलत कॉपी करने के लिए। आधा घंटा हो गया है, चलो भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट, शो दैट दे आर वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। लॉजिक क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा त्रिकोण है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है ना? हाँ, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल है, और तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके पश्चात आपको उसका एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं तो √3/4 a स्क्वायर वैसे साइड स्क्वायर। तो जल्दी से कर लीजिए, एरिया की वैल्यू कितनी होती है? एरिया की फॉर्मूला होती है
√3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a इज इक्वल टू द साइड। कर पाएंगे बच्चा ये प्रॉब्लम आप? प्रूव दैट ऑल दीज आर ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा रेडिकल का गेम हो रहा है, रूट देख के घबराइए मत, सब कटाकटी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो आपको 3 डिस्टेंस इक्वल दिखाने हैं यहाँ पे। यहाँ दीपांशु इतना क्या टेंशन बना रहे हो, करो। 3 पॉइंट दे दिया ना तुम्हें, एक पॉइंट को ए ले लो। बहुत सारा अजिनोमोटो डाल के कोई चाइनीज कुछ बना रहा है, स्मेल आ रहा है। अजिनोमोटो इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ज्यादा खाना ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ बोलो सर। आई थिंक मत बोलो, आई थिंक से कुछ नहीं होता है। उसमें दिलजीत का गाना आ जाता है, जू थिंक बना लो। क्या हो गया तेजीता, यू हैव लेफ्ट इट। है जाओ, मैं नहीं करूंगा वैसा टाइप। -√3a go on the right side because That though you should actually draw the quadrant and then do. This is arbitrary figure, not to scale. This is first for your understanding. यहाँ पे शादी का रिश्ता देखने गए हो, लड़की से बात करो, लड़की को जानो। उनके घर का प्लेट जो था ना, उसके पीछे जो पेपर टिश्यू दिया था वो थोड़ा ऐसे घुमा होता। पेपर टिश्यू में तुम्हारी जिंदगी नहीं है, जिसमें है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ रुद्र प्रताप, हो रहा है कि नहीं? आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है आंसर। अभी आउटर में खड़ा है, ट्रेन में ऐसे बोलते हैं। कहा जी पटना में घुस गया गाड़ी? नहीं जी, आउटर में खड़ा है, सिग्नल नहीं है अभी गाड़ी को। बस आपको क्या निकालना है, आप समझे कि नहीं? आपको बस ये डिस्टेंस दिखाना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। फिर कोई भी एक डिस्टेंस लेके इसका एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, बस खत्म। तो थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है। 3 डिस्टेंस दिखाने हैं आपको इक्वल, तभी ना इक्विलैटरल होगा। ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कितना है? a माइनस a मतलब a प्लस a, 2a, 2k का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ का डिस्टेंस कितना? a माइनस माइनस a, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 8a स्क्वायर। ये आपको एक डिस्टेंस मिल गया, इसका 8a स्क्वायर है डिस्टेंस। यहाँ का डिस्टेंस देख ले भैया, कितना है? a माइनस a प्लस √3a होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? a माइनस √3a होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, या जैसे भी करो कट जाएगा। a प्लस बी, a को b के साथ प्लस करेंगे तो कितना रहेगा? 2a रहेगा, सिर्फ 2a इंटू ए माइनस बी। a को b के साथ माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? √3a और √3 कितना होता है? डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज a स्क्वायर, ओ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, सॉरी। कहां से जयदीप दास, तुम सब गलत सिखाते हो बच्चों को। a स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 2√3a प्लस यहाँ कितना आएगा? 3a स्क्वायर। उधर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस 2√3a, और इधर आएगा a स्क्वायर। ई ससुरा कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये 6a स्क्वायर। इधर भी आ गया 8a स्क्वायर। भाई साहब बढ़िया है, यहां भी ले आइए, ये भी सेम ही होगा। हाँ सर, यहां भी सेम ही होगा ना। यहाँ क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया a माइनस √3a होल स्क्वायर। सी नेगेटिव माइनस दिस तो प्लस हो गया, और ये माइनस ऑफ माइनस दिस तो ये हो गया a प्लस, ये सब रूट में है। हाँ, दिस डिस्टेंसेस आर इन रूट भाई साहब। और ये हो गया a प्लस √3a होल स्क्वायर, सो विच इज सेम एज दिस। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? इसकी वैल्यू भी आएगी हमारी, d की वैल्यू आएगी √8a स्क्वायर, ठीक है ना।
अब हमें एरिया निकालना है। एरिया है √3/4 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 8a²। 4 2 8, तो कितना आएगा 2√3a² शुड बी योर एरिया। आया कि नहीं भाई साहब? बोलो बोलो ना, बोलो ना अक्षर, कोई टेंशन नहीं है, मैं बताता हूं ना, बोलो ना, बोलो कहां दर्द है, बोलो। ये वाला, अच्छा सुनो, इसका डिस्टेंस निकालते हैं अक्षत, आ जाओ। a माइनस माइनस ए होल स्क्वायर, ये समझ में आया बेटा? a माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a माइनस ऑफ माइनस ए, यानी ये भी क्या हो गया a माइनस माइनस ए होल स्क्वायर। बिट्टू ये क्या हो जाता है? a माइनस माइनस ए मतलब क्या है? 2a, ये भी 2a, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना होता है? 2a स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, और ये भी 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर को जोड़ने से कितना होता है? तो 8a स्क्वायर। लेकिन रूट है ना, डिस्टेंस हुआ तो रूट में आता है बच्चा। समझ में आया? अभी भी बोलो, कोई टेंशन नहीं है, यू गेट क्लियर, तसल्ली करके फिर आगे बढ़ना है। चलो ये स्टेप दिखाई देता हूं आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रूट में आया, ये बेटा हो गया 2a का होल स्क्वायर, और ये भी है 2a का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, लेकिन एक रूट है d के साथ, यानी d की वैल्यू कितनी हुई? √8a स्क्वायर। अब बेटा समझ में आया? और जब हम एरिया निकालते हैं तो इसका स्क्वायर लेते हैं, इसलिए 8a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। √3/4 साइड स्क्वायर ना, d is your root of this, so d square is this. All of you got the answer? Shall we proceed? Yes. We are running short of time, so let us go. Taken in the order of vertices of a rectangle, find the area. Prove that they are the order. पहले के ऑर्डर मेंटेन करना है, नहीं तो रेक्टेंगल में सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर समझे है ना? इन्नी मिन्नी चिंकी पिंकी वैसे ही जाना है आपको। So show that the points this taken in order are the vertices of a rectangle. तो सबसे पहले एक ठो रेक्टेंगल का निर्माण किया जाए, सुंदर सा, ये है हमारा रेक्टेंगल प्यारा सा, और वर्टिसेस बनाया जाए। ऑर्डर में चलिएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी। हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये -1 और 5 है, इसके बाद 7 और 9 है, इसके बाद कितना है 9 5। आपको प्रमाण करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो उसके लिए आप ये दो साइड्स इक्वल दिखाइए, ये दो साइड्स, एंड टू साइड्स इंडिविजुअली आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसकी वैल्यू आएगी ब्लाब्ला, इसकी वैल्यू आएगी ट्लाटला। उसके बाद रेक्टेंगल कैसे? इससे तो प्रमाण हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रेक्टेंगल के लिए आगे आपको दादाजी पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। ये निकालिए या फिर ये निकालिए, और इनके स्क्वायर का रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करके दिखाइए, तो ही प्रमाण होगा दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। फटाफट कर लें इसको, फटाफट। आइए, हम लोग कुछ बच्चे इस साइड का डिस्टेंस निकालते हैं, कुछ बच्चे ये डिस्टेंस निकालो। चलो गए, ठीक है? यथार्थ आप नीचे वाला डिस्टेंस निकालो, आप अरब, आप लोग सब, ऋषभ हम लोग ऊपर वाला डिस्टेंस निकालते हैं। चलो इक्वल आता है कि नहीं? -1 1 -1, ये क्या होगा 2, ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर प्लस 1 - 5 यानी कि 4 का स्क्वायर है 16, यानी कि ये आया 20 आया है भाई साहब, √20 आया है हमको। ये आप लोग चेक कीजिए, √20 नीचे वाला चेक कर ले, और नीचे वाला भी √20, बहुत भाई साहब बढ़िया। आइए अब ये वाला चेक करते हैं। 9 से 1 निकालेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर है 64, और 5 से 1 निकालेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर है 16। इसका रूट कितना हुआ भाई? √80, और ये √80 आया है। वो वाला चेक कीजिए तो भाई साहब कितना आ रहा है? √80 आ रहा है, तो आपका तो हो गया। और अब मैं, तो आप ये निकालिए, तब तक मैं ये स्क्वायर मैं इजी वाला करता हूं। 20 + 80 कितना होता है भाई साहब? 100। आपको ये √10 आना चाहिए। डायगोनल आप निकालो, मैंने ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर दिया आपके लिए। √20 का स्क्वायर प्लस √80 का स्क्वायर,
हाँ, ओनली 10 आएगा आपका, तभी तो उसको स्क्वायर करने से 100 आएगा। मैंने ये स्क्वायर निकाल के रखा है, आप ये निकालिए। क्या हो गया वेदांत? 10 नहीं, 10 आएगा। तो 7 से 1 निकालेंगे तो कितना है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 9 से 1 निकालेंगे तो 8। 8 का स्क्वायर है 64। ई का हो गया 100, और ई का रूट करेंगे तो रूट का 100 यानी कि 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है? 100। यानी कि भाई साहब एस्टैब्लिश्ड दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। और फिर आप पूछ सकते हो, सर व्हाई डिडंट यू प्रूव फॉर द अदर rectangle? Then the answer is you bhutnika. Once it is a parallelogram and one angle is 90, then in a parallelogram this and this has to be 90 consecutive interior angles, opposite angles of a quadrilateral 180 parallelogram में भी ये भी 90 होना है। तो this is necessary and sufficient। बढ़े आगे गाड़ी लेके, चलिए अगला प्रॉब्लम ये। हाँ बिट्टू बोलो। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 इसीलिए किया बेटा क्योंकि ये कैलकुलेट करके हमें 10 आया है। आपने चारों साइड को ऑपोजिट्स को इक्वल प्रूफ करके क्या प्रूफ किया? इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स नॉट सफिशिएंट दैट यू प्रूव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको ये एंगल 90 डिग्री निकालना है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 20 का स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर 20, रूट 80 का स्क्वायर 80, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो समझे? चलिए ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर मतलब लाइंग ऑन द सेम लाइन, मैं मेरे दुश्मन का घर, बीच में मेरे क्रश का घर। आहा बढ़िया। तो कितना हो गया ये? 1 1। ये है -2 ABC। अच्छा मैंने गलत लिख लिया है भाई साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऑर्डर में लिखना है। ये A है, B है, ये C है। A है 1 1, B है -2 7, C है 3 3। अब आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये भी डिस्टेंस निकालिए और दिखाइए कि इन दोनों को जोड़ने से वो होता है, तो कोलिनियर होगा। And it did not be the midpoint. Collinear means does not mean it should be the midpoint ना। क्या गारंटी है midpoint? आर्डर में दिया है ना साहब, आर्डर में लेना पड़ेगा। हाँ आर्डर में, जैसे आर्डर दिया है आर्डर पे चलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम आपका लुटिया डूबिंग। नहीं तो जेपी बन जाएंगे, जेपी स्वैन। ए बी इक्वल टू, अच्छा ये रूट 45 है, बहुत अच्छा भैया। उसका निकालिए कितना है, बीसी निकालिए। आप लोग सब एक ही प्रॉब्लम क्यों करते हैं? आधे बच्चे ये वाला करो, आधा ये करो ना, फिर रूट 125। हाँ अच्छा ये वाला रूट 45, 9 5 45, यानी कि ये है 3 रूट 5। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस एज रूट 125? 25 5 125, यानी कि दिस इज 5 रूट 5। दोनों को जोड़े तो कितना आता है? 8 रूट 5। तो यानी कि 8 को घुसाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 पे 5 घुसा दे तो यहाँ पे 64 इंटू 5, दिस शुड बी रूट ऑफ 64 इंटू 5। देखो तो चेक करके तब। हाँ AC how much have you got? रूट 20 का गड़बड़ हुआ है कुछ? सबसे बड़ा वाला कौन है यहाँ पे? रूट 20। 1 मिनट, रूट 20 बना रहा है आपका। रूट 20 मतलब 4 5 20, घबराना नहीं है, रुको ना। रूट 20 मतलब 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 और एक आंसर आपका आया था कितना? अभी देखो आपका कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। 2 रूट 5 3 रूट 5 को जोड़ने से 5 रूट 5 होता है। अब आपको सेट करना होगा। आपका आंसर सब ठीक आया है, पॉइंटों में गड़बड़ हुआ है। हाँ ऑर्डर में नहीं है इसका मतलब। योर आंसर्स आर करेक्ट। सपोज दिस सिनेरियो हैपेंस इन द एग्जाम, डोंट ब्रेक योर हेड्स।
जस्ट लुक एट द 3 नंबर्स, क्या इन दोनों को जोड़ने से ये बनता है? बिल्कुल बनता है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कौन सा डिस्टेंस निकला था बेटा? BC, यानी कि BC को एक्सट्रीम्स में डालो। ऐसा वैसे होता नहीं है यूजुअली। BC को एक्सट्रीम में डालो और A को अंदर में घुसाओ। अब समझ में आ रहा है? अब आपका प्रॉब्लम सेट हो गया। अब BC की डिस्टेंस कितनी है बेटा? √125 विच इज 5√5। AB की डिस्टेंस कितनी निकली थी आपकी? √45 मीन्स 3√5 और ये है 2√5। घबराना नहीं है इतना, ठीक है ना। इसीलिए डायग्राम पहले ड्रॉ मत कीजिए। इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले लिखिए लेट द 3 पॉइंट्स बी ABC, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस AB BC AC। बस, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है ना। AB भी निकाला, BC भी निकाला और AC भी निकाला। फिर देखिए क्या सौदा बन रहा है, वैसे सजा दीजिए, ठीक है। वैसे ऐसे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P on the line segment this and this such that AP is equal to 25 AB। बड़ा इंटरेस्टिंग है, घटाप से गड़बड़ मत कर दीजिए। लुक डायग्राम पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P on the line segment। तो पहले हमें लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। यह है लाइन सेगमेंट AB, जहां A की वैल्यू दिया हुआ है 1,2 और B की वैल्यू दिया हुआ है 6,7। P पॉइंट कहीं यहां बीच में है, हमको नहीं पता, हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेकिन बोला है AP is 2/5 ऑफ AB। AP is 2/5, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही गड़बड़ डायग्राम हो गया है। तो P पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं, यहां P XY, ठीक है ना। AP है 2/5, मतलब ये 2 है तो ये रेशियो 3 होना चाहिए। ये समझ में आया? 2/5 है मींस द टोटल शुड बी 5 ना, देन ओनली द रेशियो विल बी 1। हैव यू गॉट इट? But the trick is you should see what is what. AP means this much, AB is the whole. So this is 2/5 of this. Sum of the ratio is 5. तो अभी आप लगा सकते हैं फॉर्मूला X और Y निकालने के लिए, लेकिन उस X और Y को दो तरह से मत कीजिए। आप इस रेशियो को क्या ले लेंगे? द रेशियो क्या आ रहा है आपका? रेशियो आ रहा है 2:3। इस रेशियो को कैसे हम लिख सकते हैं? 2 को 2/2 कर लो, 1:3/2। इजी हो गया। अरे इसका 2 से डिवाइड कर, इसका 2 से डिवाइड कर। अब ये 1 से हमला करना। दिस रेशियो इज सेम एज 1:3/2। अब 1 से हमला कर, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे रहेगा? हाँ मैडम बोलिए। 80 इक्वल टू 2√2। AP तो निकालना ही नहीं है बेटा, आप AP पे क्यों? ये सेक्शन फॉर्मूला है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना है, ठीक है। तो X निकालना है। X की वैल्यू क्या होगी? इधर का रेशियो उधर के X के साथ 6 प्लस 3/2 इंटू 1, यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2। चलो X सॉल्व कर लो, कितना होगा ये? 2 6 12, 12 प्लस 3 कितना होता है बच्चा? 15/2 डिवाइडेड बाय 2 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 5/2 मींस इनटू 2/5। ये 2 कट गया, 5 3 15। X की वैल्यू तो आई है 3। अब क्या है? Y को देखते हैं कितना है। Y निकालने के लिए इधर का रेशियो उधर का 7 प्लस 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2, यानी कि ये हो गया 10। 2 2 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 5/2 मतलब इंटू 2/5। 5 2 10, यहां आएगा 4। 3 और 4 आप चेक कीजिए, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अगर आपको मेरा तरह पसंद नहीं, आप 2 और 3 से जाते हैं तो जाइए, कोई बात नहीं। मैंने 2 और 3 को कट करके 1 और 3/2 कर लिया। आपको 2/3, वैसे यहाँ सब नोन है तो 2/3 से भी कर सकते हो, पर आंसर अलग नहीं आ सकता है। या तो मैं गलत हूं या आप गलत हो गए, पर आंसर मेरा आया है 3 4। एनीवन हु गॉट 3 4? ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला का प्रॉब्लम है बेटा, दिस इज नॉट डिस्टेंस फॉर्मूला। चले आगे।
क्या भाई साहब सब लोग मुंह चुप ही हैं? हैव वी गॉट द आंसर्स और नॉट? मिला तो घर में लेकिन प्रैक्टिस कीजिए. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड दिस? लेट द रेशियो बी k:1. यहां कभी भी m:n मत करना. m:n करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा. तो हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट है. पहले रफ डायग्राम हमेशा a और b. a का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -3 5. b का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 -9. और पॉइंट p दिया हुआ है. p का कोऑर्डिनेट है 2 -5. लेट द रेशियो बी k:1. अब 1 के साथ कीजिए. अब 1 के साथ करके फायदा नहीं है क्योंकि आपको रेशियो निकालना है. तो आप k के साथ कीजिए. 1 के साथ करने से तो कुछ मिलेगा नहीं आपको. वैसे 1 के साथ करने से भी मिलेगा, एक ही बात है. तो चलो, द 2 शुड बी इक्वल टू इधर का 4k प्लस 1 इंटू -3 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k minus 3. 2k minus 4k negative 2k. negative 2 3 minus 2 is negative 5. negative 5 ने negative 5 को काटा, k की वैल्यू आई 5/2. यानी रेशियो कितना है? 5/2:1. सुंदर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2, तो रेशियो हो गया 5:2. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाऊंगा. अच्छा, हिचकिचाइए मत. Don't try to prove your excellence by suppressing your learning attitude. बताऊं, फिर से बताऊं बेटा? अच्छा, मुझे ये पॉइंट दिया हुआ है. मुझे बोला इस पॉइंट ने क्या रेशियो में डिवाइड किया. मैंने मान लिया ये k:1 है. तो फिर मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकालता हूं. व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? इधर का रेशियो k इंटू उधर का x 4k प्लस उधर का रेशियो 1 इंटू इधर का y जो कि है इधर का x, क्योंकि हम x में खेल रहे हैं, -3. तो -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो k+1. mn होता था ना, k+1. तो अब तो ये इक्वेशन सॉल्व किया. k की वैल्यू आई 5/2. हमने रेशियो क्या एज्यूम किया था अंगद? k:1. तो आपका रेशियो आया 5/2:1. देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ससुरा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीखेगा ना रात को. ई को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 कट गया, 5:2. मौजो आए हो? हाँ, ये है m:n. आज फिर से ओके, वेरी गुड. सो लेट अस टेक द इरेजर एंड लेट अस. आज फिर ढुलकी क्यों बज रहा है? आज फिर किसका बर्थडे है? आजकल रोज कुछ ना कुछ होते रहता है. अच्छा बेटो, k:1 समझ में आया ना? नाउ अब यहाँ का x कोऑर्डिनेट उठाओ 2 शुड बी इक्वल टू, ये वही वाला प्रॉब्लम था ना बेटा, m:n में रहने से m इंटू दैट x. तो k इंटू इस साइड का x विच इज 4, देन प्लस 1 इंटू इस साइड का x विच इज -3 डिवाइडेड बाय m+n होता था तो k+1. अब समझ आया बच्चों? अब यहाँ से k सॉल्व करेंगे तो क्या का वैल्यू आएगा? 5/2. तो रेशियो क्या था? k:1. 5/2:1. सुंदर करने के लिए 5/2 को 2 डेयरी मिल्क दीजिए और इसका भी दांत खराब करने के लिए 2 डेयरी मिल्क. हो गया 5/2. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. 5/2 = 1. उसके नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे 2 मल्टीप्लाई कर. दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये तो ग्रेड 6 में, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसमें. चले, टाइम हो गया है. आगे आगे आगे. अच्छा, ये क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. दिस आल्सो इट विल, आई वांट यू टू डू दिस प्रॉब्लम बिफोर यू गो. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, फाइंड द सेंट्रोइड. फटाफट सेंट्रोइड कैलकुलेट करो. सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3. इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है. -3 + 5 कितना होता है? 2. और 2 के साथ 8 करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -2. और y का कितना हो गया? 0 -2 1. सेंट्रोइड निकल गया भाई साहब. इजी, समझ में आया? सेंट्रोइड इज x by 3, y by 3. चलिए ये वाला प्रॉब्लम फटाक से कीजिए. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाइए. ये है हमारा A,
रफ स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी हुज वर्टिसेस आर, ये आपको दिया हुआ है 7 - 3, ये क्या दिया हुआ है 5,3, ये कितना दिया हुआ है -1। अब आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, यानी कि AD यहां पे आ रहा है। भाई साहब D के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, चलो निकाल लो। 5 + 3 8/2 4, और 3 - 1 2, 2/2 1, और एक मीडियन निकालना है BE। E का कोऑर्डिनेट निकालिए, 7 + 3 10/2 5, -3 - 1 -4 /2 -2। अब इसका लेंथ आ जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा लेकिन ना, इट्स स्केलिन ट्रायंगल, मीडियंस आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी आ जाएगा, कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो। अक्षत ऐसे मुंडी नहीं हिलाना है, सोच के बोलो। क्लियर? तो medians always will intersect at one point, and that's known as the centroid. Perpendicular bisectors are known as orthocenter, and angle bisector is known as incenter. हाँ बोलो आशका बिट्टू। आप थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, इसलिए मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर से बोलिए। नहीं कोई फॉर्मूला नहीं, मैं तो मिड पॉइंट यूज कर रहा हूँ ना, मीडियन मिड पॉइंट को काटता है। हाँ बीई के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसमें ये 56 भोग है, पहले का भी यूज होगा, बाद वाला भी यूज होगा। फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व बाय, दोनों ही फर्स्ट पार्ट से सॉल्व हो रहा है, पहला वाला सेकंड पार्ट मिड पॉइंट, और पहला वाला फर्स्ट पार्ट से। मीडियन है तो बीई मीडियन है, तो कहां जाके छुएगा बेटा? मीडियन का डेफिनेशन क्या है पहले वो बताइए। मीडियन वो रेखा है जो यहां कोने से जाके केंद्र बिंदु में लगता है ना, तो मध्यम बिंदु कौन सा हो गया इसका? मिड पॉइंट हुआ ना, तो मिड पॉइंट क्या होगा? 7 + 3 10 /2 5। ये क्लियर और नॉट? मैं हमसे ओके कीजिए, उसको छोड़िए। ओके नाउ, तो आपको एंड पॉइंट्स मिल गया, अब लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ जी बिट्टू, कोई डाउट? एक और देख रहे हैं फटाक से, पुराना वाला। फाइंड द रेशियो, एक ही प्रॉब्लम रह गया बच्चा, बाकी सब प्रॉब्लम तो तुम लोगों ने कर दिया है। शेर बच्चा, ये वाला कर ले। फाइंड द रेशियो इन विच, तो रेशियो क्या है? पहले रफ ड्राइंग, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। बी कितना है बेटा? 4 - 3। ए कितना है? 12,5, और पी पॉइंट क्या है? x,2। हमें सिर्फ x के साथ खेलना है ना। इस बार मजेदार चीज है, तो रेशियो हम क्या लेंगे? k:1 ले लेंगे। तो आ जाओ, x पॉइंट की डेफिनेशन कितनी होगी? 12 + 4k। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ सर? किसने बोला? हाँ बोलो ना। चलो ना, करो ना, क्या है देखो ना इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले आपको बोला है ये निकालने के लिए, ये चाहिए सबसे पहले, x भी चाहिए। अच्छा दूसरा है y का करेंगे, हाँ y से करते हैं। चलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 = वही सिखाना चाहता था, 2 = कितना होगा? 1 × 5 5 प्लस k यानी कि -3k। हाँ चलो यहां से करो, -3k डिवाइडेड बाय k + 1। चलो ये क्या हो गया? 2k + 2 = 5 - 3k। तो इधर से कितना हो जाएगा? -k = 5k, सॉरी 5k = कितना हो जाएगा? 3। तो k की वैल्यू कितनी आई? 3/5। ठीक है, k की वैल्यू 3/5 आई। और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लो अभी यहीं पे, तो आपका रेशियो कितना है? 3/5:1। अच्छा करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5 हो गया आपका रेशियो। ठीक है, अब आप 3 लेके x को सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व मत कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लमजी हो जाएगा। 3 लेके सॉल्व करो। चलो करते हैं। x = how much? 3 × 4 = 12 प्लस 5, अगर 3 लेंगे तो 5 लेना है। 5 × k is 5, 5 × 3 is 15। सॉरी, k का वैल्यू तो मिल गया ना। इतना डिस्टर्ब करता है ना दैट। k लेके ही करो बेटा, डू इट विथ k ओनली। सॉरी, डोंट डू इट विथ, डोंट चेंज इट।
day na, this society has become absolute crap yaar. Every day some nuisance they have to do out here. What melody is there in this? कौन सा भगवान आता है, भगवान ही जानते हैं इनको. थ्री बाई फाइव इज टू वन लेके करते हैं. चलो आ जाओ. एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3/5 इंटू 4, 12/5 प्लस 1 इंटू के इज के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के. तो कितना हो गया? के की वैल्यू भी तो पता है ना हमें. टॉर्चर है मतलब 3/5. आ जाओ. तो x प्लस कौन सा? हाँ ऊपर भी तो के है. कर ले यार, लॉस्ट माय हेड. कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी. के की वैल्यू कितनी है? 3/5. तो ये कितना हो गया? 15/5. 15/5 इंटू 5/8. 5 और 5 कट गया, 15/8 is the coordinate of x. आई एम सॉरी रे बेटा, घर पे जाके कर लेना. ये पढ़ाई का माहौल ही नहीं है ये. आई एम सॉरी. मतलब आपका कोई दोष नहीं है. हाँ दोष है हमारे अति भक्ति का और कुछ नहीं. हाँ बोलो बेटो. Where 4k plus 3 you have got? X is equal to k. 4k, so we got 1/5. And then why did we do again plus k? It's plus 12 plus 3. Pray that वो दोबारा वो नहीं बजाए बस. k की वैल्यू कितनी आई? 3/5 आई ना. हाँ चलो. x की वैल्यू क्या होगी? इधर का k इंटू दिस. सो 3 इंटू 4 कितना है? 12. 12/5 प्लस 1 इंटू 5. 1 इंटू k. That's 1 इंटू 12. अच्छा 12. अच्छा डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 1. ये वैल्यू कितना हो गया? 12/5 जा 60, यानी कि 72/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/8. तो 8 9 जा 72. x की वैल्यू 9 है. ठीक है 9 आया तो ठीक है. आई एम सॉरी बच्चा लोग.